Okay. Fine. Can you hear me now? Good evening, ma'am. Yeah, good evening. So Good sorry I evening, ma'am. couldn't. Good evening. Okay. So let us start. Sorry you people had to wait today. थोड़ा late हो गया. Anyways, let us begin. हाँ तो last time हम लोग ने 3 laws देखे. Law of dominance. Okay. Second law of segregation. Third law of independent assortment. जो first 2 laws है वो monohybrid cross के experiment पे based है as we saw. Okay, if you just remember the laws, I'll just repeat it so that हम लोग आगे के टॉपिक पे जाते हैं. Law of dominance क्या बोलता है? Law of dominance says that okay, when two homozygous individuals with one or more set of contrasting characters are crossed, दो individuals को लेंगे, उनमें एक character का difference होगा, one or it can be more than one, then that character which appears in F1 generation, F1 में जो character appear होगा वो dominant character है, F1 generation में जो character नहीं appear होगा that is the recessive character. Okay. Second law था law of segregation or it is also called law of purity. Means दोनों जो gametes है, okay, दोनों जो genes है वो mix नहीं हो रहे हैं ना blend हो रहे हैं, okay, but they are remaining separate. That is law of segregation. Okay, or it is also called law of purity. और जो थर्ड लॉ है दैट इज बेस्ड ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस. डाइहाइब्रिड क्रॉस सबको समझा लास्ट टाइम वी डिड ओके इन डिटेल. तुम लोग को आई हैव आल्सो टोल्ड यू टू मेक अ सिमिलर टेबल एट होम. कलरफुल स्केच कलर्स या स्केच पेन से बना लो सो दैट इट विल बी इजियर टू रेफर. द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज बेस्ड ऑन द डाइहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट which says that when hybrid possessing 2 or more pairs of contrasting factors form gametes, factors in each pair segregate independently. जितने भी factors है independently segregate होके next generation में दिए जाते हैं. They do not go in groups. जैसे कि yellow round है तो yellow next generation में yellow है तो round होगा ऐसा जरूरी नहीं है. It can be yellow and wrinkled also. Okay. Yeah, it can be green and round also. So combinations can keep changing. That is why you have so many combinations. इसीलिए humans में इतने अलग अलग characteristics है because सारे genes segregate होके next generation में जाते हैं. तो if अगर किसी को if you see a big family जिसमें 4-5 बच्चे हैं, you will see that each child is different क्योंकि कुछ ना कुछ characters, okay, कुछ ना कुछ combination अलग हुआ है when the gametes are formed. Segregation होने की वजह से you have different characteristics in each child. कोई दिखने में अलग होगा, कोई किसी का mental level अलग होगा, but there will be some or the other difference unless they are twins. Twins में we will see why उनमें same होता है because of course उनमें gametes का combination same है, but otherwise you will find the phenotypic and genotypic differences. Okay, so let us go to the next topic. Okay, now Mendel also found out some ways of checking the experiment. See, हर experiment को हम लोग check करते हैं, जैसे maths के कुछ calculations होते हैं या okay, we have a shortcut to check whether the answer is right or not. Okay, so same way here, Mendel introduced 2 types of crosses. One is called a back cross and one is called a test cross. Okay, now what is a back cross and what is a test cross? Let us see. See, नाम से आधा मतलब समझ में आ जाता है and you have to understand. Back मतलब going back, going reverse. Okay, तो मतलब यहाँ पे cross means you know, cross means crossing or transferring the gametes from one individual to another or hybridization बोल सकते हैं. तो back cross किसको बोलेंगे? Okay, now we know the experiment. Basic experiment में 2 parents है, male and female, that is the parental generation. उसके बाद जो generation आती है that is the F1 generation. ठीक है, F1 जनरेशन को हम लोग सेल्फिंग करके आगे जाएंगे तो F2 जनरेशन है, बट हम लोग को आगे नहीं जाना है, हम लोग को पीछे जाना है. बैक क्रॉस मींस यू आर गोइंग बिहाइंड. सो व्हाट यू हैव टू डू इज F1 इंडिविजुअल्स को लेना है और उसको क्रॉस करना है, ओके, किसी एक पेरेंट के साथ. गेटिंग? सो 2 पेरेंट्स हम लोग ने लिए थे फॉर एग्जांपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट. ओके, सो टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट को जब हम लोग क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन में यू गेट ऑल टॉल प्लांट्स, बट ये टॉल पेरेंट टॉल प्लांट से अलग है. हाउ? they don't have the same gametes. उनका कॉम्बिनेशन है कैपिटल T स्मॉल t. ओके, अब इसको किसके साथ क्रॉस करना है? किसी भी एक पेरेंट के साथ. जब F1 जनरेशन के हाइब्रिड को, F1 जनरेशन में जो भी इंडिविजुअल है इट इज अ हाइब्रिड क्योंकि उसमें 2 अलग अलग
गैमेट्स प्रेजेंट है। टॉल प्लांट का कैपिटल टी मतलब टॉलनेस का जीन, ड्वार्फ प्लांट का स्मॉल टी मतलब ड्वार्फनेस का जीन। ओके, तो इट इज कॉल्ड अ हाइब्रिड। इस हाइब्रिड को जब हम लोग क्रॉस करते हैं विथ वन ऑफ द पेरेंट्स तो उसको बोलते हैं अ बैक क्रॉस। ओके, किसी भी पेरेंट के साथ कर सकते हैं। इट कैन बी द टॉल प्लांट मतलब डोमिनेंट पेरेंट, इट कैन बी द ड्वार्फ प्लांट मतलब रिसेसिव पेरेंट। इज दिस क्लियर? अ बैक क्रॉस मींस गोइंग बैकवर्ड, क्रॉस हो रहा है पीछे वाले जनरेशन के साथ, दैट इज विद द अर्लियर जनरेशन। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉल्ड अ टेस्ट क्रॉस। ओके, बैक क्रॉस का यहाँ पे दे हैवंट गिवन। ओके, जस्ट अ मिनट। Okay, next we'll see test cross. The cross of F1 hybrid with homozygous recessive parent. See, back cross or test cross is almost the same, but when we say back cross, कोई भी पेरेंट के साथ क्रॉसिंग कर सकते हैं। ओके, क्रॉसिंग मींस वी आर टॉकिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। किसी भी एक पेरेंटल जनरेशन का प्लांट लेके उसके साथ क्रॉसिंग करना है, उसके साथ हाइब्रिडाइजेशन करना है, तो उसको बोलेंगे बैक क्रॉस। बट व्हेन वी से अ टेस्ट क्रॉस हम लोग को दो पेरेंट्स में से जो रिसेसिव है उसके साथ करना है। ओके, so cross of hybrid F1 hybrid with the homozygous recessive parent. Recessive जिसमें जो recessive characters है, जैसे कि tall and dwarf में the dwarf is the recessive one. Okay, yellow green में green is the recessive one. Round and wrinkled में wrinkled is the recessive one. तो जिस जो भी experiment हम लोग कर रहे हैं उसके F1 का जो भी hybrid है उसको recessive parent के साथ जब crossing करेंगे तो it is called a test cross. Okay, why a test cross? Test matlab you are going to test something. It is used to test whether an individual is homozygous or heterozygous. See, अभी plant हम लोग ने लिया, वो tall plant है, but how do you know कि वो pure tall है कि hybrid tall है? Okay, pure tall का combination होगा capital T एंड हाइब्रिड टॉल का कॉम्बिनेशन होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर हाउ डू यू नो? क्योंकि प्लांट को देखने पे वी कैन नॉट नो व्हाट इज द कॉम्बिनेशन, अंदर क्या जीन्स का कॉम्बिनेशन है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको क्रॉस करना पड़ेगा विथ द रिसेसिव पेरेंट। ओके, सो टेस्ट क्रॉस इज इजी, सिंपल, रिपीटेबल एंड प्रेडिक्टेबल। इजी है बिकॉज क्रॉसिंग के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स है उसमें कुछ नहीं करना है, मेल गैमेट्स लेने हैं फ्रॉम विच एवर इज द मेल पेरेंट और उसको फीमेल पेरेंट पे ट्रांसफर करना है। ओके, इट इज सिंपल, रिपीटेबल, बार बार कर सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट। प्रेडिक्टेबल मींस यू नो कि इसका क्या रिजल्ट होने वाला है। ओके, लेट अस सी द एक्सपेरिमेंट। ओके, 1 मिनट। Test cross can be used to find out the genotype of any plant. तो for example plant है, okay, जो दिखने में तो tall है but we don't know what is the genotype. अभी उसके दो possibilities है. It can be a pure tall plant जिसका combination है capital T. It can be a hybrid tall plant जिसका combination है capital T small t. Okay, but उसका हम लोग को combination नहीं पता चलेगा. So what we have to do? It is not known whether it is a homozygous pure or a heterozygous. Homozygous means दोनों genes का combination same है, जैसे कि capital T, capital Y, okay? Or it is heterozygous. It can be capital T, capital Y, small y, something like that. उसको बोलते हैं heterozygous. अभी इस एग्जाम्पल में हम लोग ने टॉल एंड ड्वार्फ नहीं लिया है, इसमें हम लोग ने कलर, फ्लावर का कलर लिया है। ओके, सो वी सॉ 3 एक्सपेरिमेंट्स। पहले हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया है हाइट के साथ, सेकंड हम लोग ने कलर एंड शेप के साथ, ग्रीन, येलो, राउंड एंड रिंकल। अभी ये जो टेस्ट क्रॉस है, एग्जाम्पल के लिए दे हैव गिवन फ्लावर कलर, कोई भी प्रॉपर्टी के साथ हम लोग कर सकते हैं। ओके, जस्ट लेट अस फोकस ऑन दिस फिगर। So we are taking a pea plant having violet flowers is crossed with a pea plant with white flowers. Okay, so एक violet flowers है, you can see over here, violet, दो type के flowers produce होते हैं, one is a violet flower and one is a white flower. If all the flowers produced are violet, we can conclude that the plant is pure. अभी देखो F1 generation में सारे प्लांट्स डोमिनेंट कैरेक्टर के होते हैं। ओके, तो अब वी नो दैट वॉयलेट इज द डोमिनेंट फ्लावर कलर। तो अगर हम लोग ने वॉयलेट प्लांट लिया और उसको व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट के साथ क्रॉस किया, और अगर ये वॉयलेट प्लांट प्योर है, इफ इट इज प्योर एंड इट इज होमोजाइगस, तो नेक्स्ट जनरेशन के जो सारे प्लांट्स हैं दे विल हैव वॉयलेट फ्लावर्स।
आर यू गेटिंग? आई रिपीट, दो पॉसिबिलिटीज है. फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारा ये जो प्लांट है जिसमें वॉयलेट फ्लावर्स है, अभी हम लोग हाइट नहीं कंसिडर कर रहे, वी आर नॉट कंसिडरिंग सीड कलर शेप, वी आर फोकसिंग ऑन फ्लावर कलर. ओके, तो ये जो वॉयलेट कलर है ऐसे फ्लावर वाले प्लांट्स है. ओके, बट वी डोंट नो कि ये प्योर है कि ये हाइब्रिड है. अगर प्योर है, कलर इसका जो कॉम्बिनेशन है आर दिया जाता है. एक्चुअली वॉयलेट का वी होता है, बट दिस ऑल्सो गोज, दिस इज शेड ऑफ रेड, तो इसको आर, कैपिटल आर लेटर दिया गया है. सो वॉयलेट फ्लावर्स के लिए लेटर है कैपिटल आर, एंड व्हाइट फ्लावर्स के लिए इट इज स्मॉल आर, स्मॉल आर. So let us say we have a plant with violet flowers, but इसका combination capital R है या capital R small r है, we don't know. उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका क्रॉस करना पड़ेगा विथ अ व्हाइट फ्लावर प्लांट. ओके, व्हाइट फ्लावर का कॉम्बिनेशन होगा स्मॉल आर, स्मॉल आर. नाउ सी इन द फिगर, यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को. ओके, वी हैव ओके, फर्स्ट जो फिगर है उसमें जो सारे फ्लावर्स हैं, ओके, सारे फ्लावर्स वॉयलेट मिले हम लोग को, मतलब नेक्स्ट जनरेशन के सारे प्लांट्स में वॉयलेट फ्लावर्स है. ओके, एंड दे आर ऑल हाइब्रिड्स, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, चार चार बार. ओके, मतलब क्या, जो प्लांट हम लोग ने यूज किया था इट वाज अ प्योर, क्योंकि अगर प्योर यूज करेंगे तभी सारे जो इंडिविजुअल्स है दे विल हैव डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस. ओके, इज दिस क्लियर? लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है कि अगर दोनों प्योर प्लांट्स है, दोनों पेरेंट्स प्योर है, तो जो F1 जनरेशन में प्रोड्यूस होगा वो हाइब्रिड होगा और उसमें कैरेक्टर होगा डोमिनेंट पेरेंट का. तो यहाँ पे डोमिनेंट पेरेंट है वॉयलेट फ्लावर्स वाला प्लांट. सो ऑल द प्लांट्स इन F1 जनरेशन विल हैव वॉयलेट फ्लावर्स. सो अगर हम लोग को वी आर डूइंग अ टेस्ट, ओके, हम लोग ने प्लांट लिया है और उसका क्रॉस किया है विद अ व्हाइट फ्लावर प्लांट, और अगर सारे प्लांट्स वॉयलेट फ्लावर वाले कलर्स के साथ, वॉयलेट कलर वाले फ्लावर्स के साथ अगर प्रोड्यूस हो गए, तो मतलब हमारा जो प्लांट है दैट इज अ प्योर प्लांट. ओके, सो वी हैव यूज्ड एन अननोन प्लांट ओवर हियर. सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? सेकंड पॉसिबिलिटी राइट साइड का जो टेबल दिख रहा है, सेकंड पॉसिबिलिटी है कि हम लोग को नेक्स्ट जनरेशन में F1 जो भी नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें आधे प्लांट्स वॉयलेट फ्लावर्स के होंगे और आधे प्लांट्स व्हाइट फ्लावर के होंगे. अगर हाफ हाफ मिल रहा है, मतलब 1:1 रेशियो मिल रहा है, आधा ये कलर और आधा वो कलर, मतलब दो कैरेक्टर्स, दैट मीन्स okay. Now see this test, now why pea plant they have chosen, because pea plant has only these two colors. Okay, and out of these two colors we know that violet is dominant and white is recessive. If you want to, now this cannot be done with rose. Abhi rose mein bahut sare colors hai. Okay, then or you will have to find out which is the dominant color. If you know, if you have two variants, मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट्स मेंडल ने ऐसे चूज किए कि दो ऑपोजिट्स है, दो वेरिएंट्स है, टॉल ड्वार्फ, ग्रीन येलो, वॉयलेट व्हाइट. ओके, तो अगर ऐसे दो पॉसिबिलिटीज है और उसमें से यू नो दैट वन इज डोमिनेंट. ओके, नाउ यहाँ पे we know means we know because Mendel has done the experiment, और Mendel ने बहुत सारे plants पे experiment करके he has proved that violet color is the dominant color. So we know it is dominant and we know that एक ही और option है white flowers, that is recessive. तो ऐसे अगर दो options वाला अगर कोई plant है तो we can do this experiment on that plant and we can find out कि वो pure है कि hybrid है. Okay, fine, good question. ये भी हो सकता है possible. It can be done on any plant, any animal, but दो option ये होने चाहिए. There should be one dominant, one recessive. Okay, बीच के variants नहीं होने चाहिए, then it becomes very difficult. Okay, so ये जो second option है, second possibility है, plant violet flowered है, उसको हम लोग क्रॉस कर रहे हैं विद व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट, बट नेक्स्ट जनरेशन में हम लोग को आधे आधे दोनों भी कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं. ओके, इन द रेशियो 1:1. मतलब अगर हम लोग 100 प्लांट्स पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू गेट 50 plants with white color and 50, not maybe not exactly 50-50, 49-51, 48-52, मतलब more or less it is not exact mathematical, exact approximately we are going to get a 1:1 ratio. अगर 1:1 ratio आता है that means जो प्लांट हम लोग ने यूज किया है इट इज नॉट अ प्योर प्लांट. प्योर प्लांट होता तो व्हाइट फ्लावर्स होते ही नहीं नेक्स्ट जनरेशन में. ओके, अगर प्योर दोनों प्योर प्लांट्स है तो एक ही कैरेक्टर होगा नेक्स्ट जनरेशन में, दैट इज ऑफ द डोमिनेंट पेरेंट. अगर दोनों कैरेक्टर्स है मतलब
जो हम लोग ने प्लांट यूज किया था, दैट इज अ हाइब्रिड. इज द कंसेप्ट क्लियर? यस. Yes. टेस्ट Yes, ma'am. क्रॉस का ओके, Yes, किसी को ma'am. डाउट है? Yes, ma'am. तो या सो ये टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में फर्क क्या है? बैक क्रॉस में हम लोग यहाँ पे डोमिनेंट पेरेंट भी ले सकते हैं, बट डोमिनेंट पेरेंट लेंगे तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. तो बैक क्रॉस इज जस्ट क्रॉसिंग विथ इंडिविजुअल फ्रॉम द अर्लियर जनरेशन. ओके, उससे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, इट इज जस्ट अ टेक्निक. बट अगर सच में चेक करना है तो वी हैव दिस टेस्ट क्रॉस, जिसमें जो भी प्लांट है उसको हम लोग अर्लियर जनरेशन वाले प्लांट के साथ, उसमें से कौन से प्लांट के साथ क्रॉस करेंगे? रिसेसिव पेरेंट के साथ. तो टॉल एंड ड्वार्फ में से यू विल चूज द ड्वार्फ प्लांट. येलो एंड ग्रीन में से यू विल चूज द प्लांट विद ग्रीन सीड्स. राउंड एंड रिंकल में से रिंकल लेंगे. यहाँ पे वॉयलेट एंड व्हाइट में से वी हैव टेकन द व्हाइट फ्लावर, बिकॉज हम लोग यहाँ पे फ्लावर का कलर कंसिडर कर रहे हैं. ओके, सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट कॉम्बिनेशंस, यहाँ पे पूरा 100% वॉयलेट फ्लावर्स मिले हैं इन द लेफ्ट साइड का जो फिगर है. दैट मीन्स ये जो प्लांट हम लोग ने यूज किया है, दैट इज अ प्योर प्लांट. whereas right side वाले figure में you can see that we are getting a 50-50 ratio, 1:1 ratio. Okay, so here we can say that जो plant हम लोग ने use किया है, it is a hybrid plant. Okay, so thus you can use a test cross for finding the genotype of a plant. It can be an animal, as she had asked the doubt. Okay, but we should know कि क्या dominant है, क्या recessive है, and ज़्यादा variants नहीं होंगे, तो it will be easier. Okay, so we just I'll just read through. A pea plant having violet or purple flowers is crossed with a pea plant with white flowers. If all flowers produce a violet, okay, जैसे first case में हुआ, we can conclude that the plant is pure or homozygous. सारे अगर flowers same character के हुए, सारे violet flowers वाले plant अगर produce हुए, then we can say that the plant is homozygous. Okay, and if we get violet and white flowers both in 1:1 ratio, then we can say that the plant is heterozygous. टेस्ट क्रॉस इज ऑल्सो यूज टू इंट्रोड्यूस यूजफुल रिसेसिव ट्रेट्स. अभी देखो, अगर एग्रीकल्चर में व्हेन यू एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट क्या करते हैं, यू वांट, इफ यू वांट सम ट्रेट्स, अभी ये सब जेनेटिक्स तो ऑफ कोर्स दिस हैज बिकम अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर. तो अगर साइंटिस्ट को या अगर फार्मर्स चाहते हैं कि कोई ट्रेट ऐड हो नेक्स्ट जनरेशन में, ओके, जैसे कि सी इफ यू हैव ऑल violet colored flowers, but if you want कि white colored flowers भी produce हो, अगर market में white colored flowers का demand ज्यादा है compared to violet colored flowers for example, then you can cross it with a recessive plant. तो next generation में दोनों मिलेंगे, violet flowers भी मिलेंगे, violet flowers वाले plant भी मिलेंगे, and white colored flowers भी मिलेंगे. Okay, or it can be any character that you want to introduce. Okay, तो ये सारे experiments से एग्रीकल्चरिस्ट एंड साइंटिस्ट एंड फार्मर्स के सब कॉम्बिनेशन में यू हैव एडिशनल कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स. अभी जो भी हम लोग मार्केट में वेजिटेबल्स देखते हैं, सब में एडेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ओके, इफ यू गो टू सी टमाटोज डिड नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस. ओके, सो ये हार्डनेस की जो प्रॉपर्टी है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द टमाटो प्लांट. या जो स्वीट कॉर्न है, देयर वाज नो स्वीट कॉर्न, इट वाज जस्ट कॉर्न जो हम लोग खाते हैं, भुट्टा मक्का, दैट वाज प्लेन कॉर्न. फिर अमेरिकंस, ऑफ कोर्स दैट वाज अ एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक, जो ज्यादा शुगर प्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज एन एडेड क्वालिटी. ओके, सो ये सारा जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स है या हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए हुए प्लांट्स है. ओके, so test cross is used to introduce useful recessive traits. Okay, recessive traits क्यों? क्योंकि dominant traits तो अपने आप आएंगे, बट अगर कोई रिसेसिव ट्रेट है जो नहीं आ रही है फॉरवर्ड, विच इज नॉट कमिंग फॉरवर्ड, एंड इट इज अ यूजफुल ट्रेट. जरूरी नहीं कि सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट इज अ गुड वन एंड रिसेसिव ट्रेट इज अ बैड वन. जैसे कि येलो, अगर येलो सीड्स है और ग्रीन सीड्स है, तो green is also a good trait. White flowers and violet flowers है, तो white flowers are also good. So if you want to introduce a recessive trait, we will go for a test cross. Test cross करके वो recessive trait को introduce किया जाता है ताकि next generation में वो character आ जाए. ठीक है? In all in hybrids of self-pollinated plants during rapid crop improvement programs. Okay, so normally plants self-pollinated होते हैं, और self-pollinated plants में नए कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आ सकते. ओके, ये जो हम लोग क्रॉस वर्ड यूज कर रहे हैं, क्रॉस मतलब ये क्रॉस पॉलिनेशन है, हाइब्रिडाइजेशन है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं गैमेट्स. बट कुछ प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन होता है सिर्फ उनमें. तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो नए कैरेक्टर्स आएंगे कहां से? क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन मींस इट इज द सेम पेरेंट.
सेम पेरेंट में मेल गैमेट है, सेम पेरेंट में फीमेल गैमेट है, तो उसके जो एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स है वो ही जाएंगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन. समटाइम्स सेम कैरेक्टर्स कंटिन्यू होने से ओके इट बिकम्स वीक. जो कैरेक्टर बार बार रिपीट होता है जनरेशन टू जनरेशन, कभी कभी उसमें एक वीकनेस आ जाता है. सो साइंटिस्ट प्रेफर टू ऐड सम न्यू कैरेक्टरिस्टिक. कोई नया कैरेक्टरिस्टिक जब ऐड होता है प्लांट में तो इट गेट्स अ न्यू, यू कैन से अ न्यू विगर. इसको हाइब्रिड विगर बोलते हैं, ये वर्ड आएगा आगे चैप्टर्स में. हाइब्रिड विगर मींस दोनों प्लांट्स जब अलग अलग हो, दोनों पेरेंट्स जब अलग हो, ओके तो दोनों के गुड क्वालिटीज या गुड कैरेक्टर्स लिए जाते हैं इन द नेक्स्ट जनरेशन. ओके सो दिस इज वन रीजन कि एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं कि कौन सा कैरेक्टर ऐड करना है, कौन सा कैरेक्टर डिलीट करना है. ओके सो लेट अस सी सम टेस्ट क्रॉसेस. Following is the graphical. Okay, we have already seen that. Okay, इज दिस क्लियर? सो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, ओके मेंडलियन जेनेटिक्स, मेंडल ने जो जेनेटिक्स स्टार्ट किया, जिस एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट किया, जो प्रोसेसेस उसने बताए, सिंपल प्रोसेसेस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, ये सारे सिंपल प्रोसेसेस उसने बताए. ओके एंड इसमें मॉडिफिकेशंस भी हो सकते हैं. यू कैन टेक एनी कैरेक्टर, उसका उसने सिंप्लीफिकेशन में टैबुलर फॉर्म भी बताया, the Punnett square or checkerboard method. Okay, so your Mendelian genetics ends. Mendel ने इतना of course और भी है, but यहाँ पे at your level Mendel genetics यहाँ पे खत्म होता है. Next we will go to some deviations. Deviations means not necessary कि हर बार Mendel's laws are followed. Okay, so now we will see कि कहाँ पे Mendel's laws नहीं follow होते, या you can see some deviations. Deviations मतलब थोड़ा सा changes या थोड़े जो एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स में थोड़े से मॉडिफिकेशंस हम लोग को मिल रहे हैं. ओके बिफोर गोइंग टू द डिविएशंस, इज देयर एनी डाउट ऑन योर पार्ट? किसी को कोई डाउट है अब तक? व्हाट वी डिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, वी डिड द 3 लॉज, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस. ये 5 हम लोग ने मेजर टॉपिक्स कवर किए. इसमें कोई किसी को कोई भी डाउट है तो जस्ट क्लियर इट आउट नाउ, क्योंकि हम लोग फिर जाएंगे थोड़ा सा अलग टॉपिक पे जा रहे हैं, which is of course related. Anyone has any doubt, you can just ask me right now. Yeah. Yes, all clear, no doubts? Yes, ma'am. Okay, good. Okay, fine. अगर किसी को कुछ आते हैं बीच में, you can ask me. Okay, so let us proceed. Okay, now before going to deviations, let us see कि मेंडल ने क्या क्या assume किया था. Okay, few generalizations were arrived at by Mendel on the basis of his experiments of garden pea plants. तो see मेंडल के पास कोई scientific backup knowledge नहीं था. Okay, at that time कुछ ऐसे discoveries नहीं हुए थे, तो उसने कुछ चीजें assume किए, कुछ generalizations उसने he made some generalizations, मतलब he made some assumptions कि on this basis he did all his experiments और उसके सारे results और उसके सारे laws. Okay, now what were his generalizations? Single trait is produced by single gene and there are 2 alleles. Okay, एक trait के लिए एक gene है और उस एक gene के 2 alleles है. Okay, for example अगर height की बात करते हैं तो height के लिए एक ही gene है, gene एक ही है, पर उस gene के 2 अलग अलग forms है. Okay, it can be a gene for tallness, it can be a gene for dwarfness. अगर seed color की बात करें तो trait एक ही है, seed color, उसकी gene भी एक है और उसके 2 अलग अलग फॉर्म्स है, एक जिससे ग्रीन कलर प्रोड्यूस होता है, एक जिससे येलो कलर प्रोड्यूस होता है. क्लियर? सेम फॉर फ्लावर कलर, इट कैन बी अ वायलेट कलर और अ वाइट कलर. तो एक ट्रेट के लिए एक जीन है और 2 एलील्स है, ये उसका assumption था फर्स्ट. सेकंड assumption, second generalization, 2 alleles show interaction in which one is completely dominant. Okay, दोनों alleles में से एक allele completely dominant है. अभी ये उसने assumption किया बिकॉज उसके एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा कहीं भी नहीं दिखा कि टॉल एंड ड्वार्फ में मीडियम हाइट वाला प्लांट आ रहा है, कि थोड़ा सा ड्वार्फ प्लांट भी थोड़ा सा एक्सप्रेस हो रहा है, या वॉयलेट एंड व्हाइट फ्लावर में व्हाइट कलर भी बीच में आ रहा है वॉयलेट के. ओके, ही सॉ दैट एक कंप्लीटली डोमिनेंट है. ओके, अब ये हम लोग देखेंगे कि ये रियलिटी नहीं है, देयर आर सम डिविएशंस. थर्ड, उसने अज्यूम किया कि फैक्टर्स फॉर डिफरेंट ट्रेट्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स assort independently. जो जीन्स अलग अलग ट्रेट्स के लिए है और अलग अलग क्रोमोसोम्स पे है,
दे आर इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड, ये उसका थर्ड लॉ है. एज आई टोल्ड यू, 3 लॉ में से 2 लॉज आज भी फॉलो होते हैं, बट जो थर्ड लॉ है उसमें कुछ साइंटिस्ट को, अभी जब साइंटिस्ट और एक्सपेरिमेंट्स कर रहे, दे आर फाइंडिंग इट, दे आर फाइंडिंग सम sort of deviations, कुछ उसमें अलग भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं. ओके, सो दैट वी आर गोइंग टू सी. आई रिपीट, 3 चीजें उसने अज्यूम की और उसी 3 चीजों को हम लोग को देखना है कि कैसे वो सही है या नहीं है, कि उसमें कुछ और मॉडिफिकेशंस आए हैं या कुछ डिविएशंस आए हैं. ओके, आई रिपीट, फर्स्ट उसने अज्यूम किया कि एक ट्रेट मतलब एक कैरेक्टर एक जीन से बनता है और उस एक जीन के 2 अलग अलग फॉर्म्स है, मतलब 2 अलील्स है. 2 एलील्स में से वन इज कंप्लीटली डोमिनेंट. ये वर्ड याद रखो, ही हैज अज्यूम कि कंप्लीटली डोमिनेंट है. इट वाज नॉट हिज फॉल्ट, उसको सारे रिजल्ट्स वैसे ही आए, मे बी बिकॉज ही चूज पी प्लांट. ओके, अभी जरूरी नहीं है कि सारे साइंटिस्ट पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं. they are experimenting on other plants, they are experimenting on animals, they are experimenting on humans also. Okay, so but it is very difficult to experiment on animals and humans, क्योंकि अपना एक generation minimum 20 years का होता है. Okay, so it is not so easy to study all this. pea plants का सिर्फ 4 months का था. Okay, बट मेंडल को ऐसा कुछ ऑब्जर्व नहीं हुआ. ही ऑलवेज सॉ कि एक कैरेक्टर कंप्लीटली डोमिनेंट है. थर्ड, उसने क्या बोला कि फैक्टर्स फॉर डिफरेंट ट्रेट्स, अलग अलग ट्रेट्स के जो फैक्टर्स या जीन्स है वो अलग क्रोमोसोम्स पे अगर है तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं. ओके, विद पैसेज ऑफ टाइम नंबर ऑफ डिविएशंस वर ऑब्जर्व. तो जैसे मेंडल का स्टडी और साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया, ओके, दे स्टार्टेड विद वेरियस एक्सपेरिमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड. उनको कुछ डिविएशंस ऑब्जर्व हुए, कुछ अलग एक्सपेरिमेंट, कुछ अलग रिजल्ट्स ऑब्जर्व हुए. ओके, so this era is called the post Mendelian era. मेंडल के बाद का जो टाइम है, that is called the post Mendelian era, that gave additional information on patterns of inheritance. Of course, जितना एक्सपेरिमेंट्स होते गए, जितना रिसर्च होता गया, उतना और इंफॉर्मेशन मिला on patterns of ओके. तो जैसे जैसे और इंफॉर्मेशन आता गया, यू केम टू नो मोर एंड मोर थिंग्स. तो ये जो डिविएशंस दिखे, इसको बोलते हैं न्यू मेंडलिज्म. ओके, मेंडल के स्टडी में जो डिविएशंस मिले, दैट इज कॉल्ड न्यू मेंडलिज्म. तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ न्यू मेंडलिज्म और कैसे डिविएशंस आए. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डिविएशंस है, लेट अस सी. ओके, वी सॉ कि मेंडल ने क्या assumptions किए. नाउ लेट अस सी कि डिविएशंस क्या है. ओके, सिंगल ट्रेट, ओके, हैज अ showing interactions. वहां पे उसने वर्ड यूज किया था कंप्लीट डोमिनेंस. ओके, अब यहाँ पे देखो 2 नए वर्ड्स आ रहे हैं. वहां पे 2 एलील्स जो है उनमें 2 तरीके के, ऑफ कोर्स डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस पॉसिबल है, बट ऐसे भी इंटरैक्शंस है जैसे co-dominance and incomplete dominance. Okay, we'll see in the next topic कि what is co-dominance and what is incomplete dominance. I repeat, मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में उसको एक ही रिजल्ट दिखाई दिया कि अगर एक ट्रेट है, जैसे ओके, एक जीन है पर उसके 2 एलील्स है, 2 डिफरेंट फॉर्म्स है, तो उसको सिर्फ एक ही रिजल्ट दिखा कि डोमिनेंस हो रहा है. ओके, बट यहाँ पे डिविएशन में क्या है, we are going to see 2 different results, एक co-dominance और एक incomplete dominance. Okay, so we'll see that. Second deviation क्या है, single trait has a single gene और उसने क्या बोला कि 2 एलील्स, 2 ही एलील्स हो सकते हैं. ओके, बट नॉट नेसेसरी, एज आई टोल्ड यू कि उसमें 2 ही एलील्स दिखे, वायलेट फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर, बट वी नो कि कितने फ्लावर्स के कितने अलग अलग कलर्स होते हैं, तो नॉट नेसेसरी कि 2 ही एलील्स हो. रोज के कितने वैरायटीज है. ओके, बाकी भी बहुत सारे फ्लावर्स के यू हैव डिफरेंट एलील्स, इट कैन हैव डिफरेंट कलर्स. ओके, सो देयर कैन बी मोर देन 2 एलील्स, इसको बोलते हैं मल्टीपल एलेलिज्म. तो ये एक डिविएशन साइंटिस्ट को दिखाई दिया कि नॉट नेसेसरी कि 2 ही एलील्स हो, देयर कैन बी मल्टीपल एलील्स. ओके, जिसको बोलेंगे मल्टीपल एलेलिज्म. जो थर्ड डिविएशन है, सिंगल ट्रेट, यहाँ पे हर बार उसने बोला है सिंगल जीन. मैम अब म्यूट है. मैम
हेलो, आप म्यूट कैन थी। यू? अच्छा, ओके। थर्ड पॉइंट पे है हम लोग, सिंगल ट्रेट कैन हैव मोर देन वन जीन्स। ओके, मतलब एक ट्रेट के लिए अब तक हम लोग ने क्या देखा, एक ट्रेट के लिए एक जीन होती है, जैसे कि टॉलनेस, हाइट के लिए ओके यू हैव एक वन जीन जिसके दो अलग अलग फॉर्म्स है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, सेम वे वॉयलेट फ्लावर के लिए आर एंड व्हाइट फ्लावर के लिए स्मॉल आर एंड सो ऑन। बट कुछ ऐसे ट्रेट्स है जिसके लिए दो तीन जीन्स अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, इसको बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ओके, ट्रेट एक ही है, इसीलिए देखो हर बार जरूरी नहीं है कि दो ही एक्सट्रीम्स हो। ओके, जैसे वील सी इन केस ऑफ स्किन कलर, स्किन कलर अगर कोई एक पेरेंट डार्क है और दूसरा पेरेंट लाइट कलर्ड है, फेयर है, तो जरूरी नहीं है कि बच्चा या तो डार्क होगा या फेयर होगा, उसका बीच का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। अगेन बीच का कॉम्बिनेशन आना डज नॉट मीन कि दोनों जीन्स मिक्स होके बीच का कलर आ रहा है। ओके, उसका ये रीजन है कि उस ट्रेट के लिए देयर आर मल्टीपल जीन्स। ओके, मल्टीपल जीन्स रिस्पॉन्सिबल, इसको बोलेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ओके, एंड लास्ट जो डिविएशन है दैट इज अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंसिंग मेनी ट्रेट्स। कभी कभी एक जीन बहुत सारे ट्रेट्स को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। ओके, we go through the deviations once again because deviations के ऊपर we have 4 new concepts we have to study. I just repeat in short. First deviation उसने क्या बोला था कि single trait single gene two alleles, ये तो बराबर था। उसने क्या बोला था कि Mendel had said that um, one of the allele is going to be dominant. Okay, जो हम लोग ने हर एक्सपेरिमेंट में देखा, बट जरूरी नहीं है, डिविएशंस में ऐसा देखा गया है कि दो अलग अलग रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं, दो अलग रिजल्ट्स मिल सकते हैं, उसमें से वन इज कॉल्ड कोडोमिनेंस, वन इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सेकंड डिविएशन, सिंगल ट्रेट हैज अ सिंगल जीन बट उसके एलील्स मोर देन टू भी हो सकते हैं, दैट इज मल्टीपल एलेलिज्म। थर्ड पॉसिबिलिटी, एक ट्रेट के लिए देयर कैन बी मोर देन वन जीन्स, जिसको बोलेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, showing different epistatic interactions or additive effect. Okay, this we will see when we go to the actual topic कि हर जीन का एक एडिटिव इफेक्ट होता है, एडिशन होता है। ओके, तो ये जब हम लोग वो टॉपिक पे जाएंगे यू विल अंडरस्टैंड। लास्ट टॉपिक, लास्ट जो डिविएशन है, वन जीन कैन इन्फ्लुएंस मेनी ट्रेट्स, एक जीन से दो तीन ट्रेट्स भी इफेक्ट हो सकते हैं ऑर्गेनिज्म में, इसको बोलेंगे प्लियोट्रॉपी। ओके, सो let us go to the deviations now. It was observed that phenotypic expression of a gene can be modified or influenced by the other gene. Okay, एक जीन का जो एक्सप्रेशन है वो दूसरे जीन की वजह से मॉडिफाई हो सकता है। Okay, इसको बोलेंगे phenotypic interactions. These or gene interactions. These gene interactions are of two types. Intragenic interactions. इंट्रा मीन्स विद इन, इंट्राजेनिक मीन्स एक जीन एक ही है, जीन के अंदर इंटरैक्शंस हो रहे हैं, दे अकर बिटवीन एलील्स ऑफ द सेम जीन। एग्जाम्पल, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, ये जो दो टॉपिक्स हैं इसमें इंट्राजेनिक इंटरैक्शंस हो रहे हैं। ओके, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक आई विल फर्स्ट टीच यू व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो इंट्राजेनिक इंटरैक्शंस मींस एक जीन के अंदर इंटरैक्शंस हो रहे हैं और उसमें हम लोग को दो ये कॉम्बिनेशंस, दो चीजें दिखाई देंगी, वन इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। इट आल्सो अकर्स बिटवीन मल्टीपल एलील सीरीज ऑफ अ जीन। ओके, एक एक कंसेप्ट पहले हम लोग समझ लेते हैं। इंट्राजेनिक इंटरैक्शंस में ये जो दो नए नाम आए हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। ओके, सो फर्स्ट वी विल गो टू व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये पूरा करने के बाद थोड़ा तुम लोग को क्लियर हो जाएगा, देयर मस्ट बी सम डाउट्स इन्वॉल्व। ओके, सी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, नाम से पता चलता है कि डोमिनेंस तो है, द कैरेक्टर इज डोमिनेंट बट पूरे तरीके से डोमिनेंट नहीं है, वो आधा अधूरा डोमिनेंट है, इट इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट। ओके, so in incomplete dominance both alleles of an allelomorphic pair express themselves partially। मतलब अब तक क्या हो रहा था मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में, दो एलील्स में से एक डोमिनेंट था वो एक्सप्रेस हो रहा था, दूसरा रिसेसिव था वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा, दोनों एलील्स
थोड़े थोड़े एक्सप्रेस होंगे पार्शियली, मतलब ना तो एक फर्स्ट वाला डोमिनेंट है ना दूसरा डोमिनेंट है। ओके, तो इसीलिए हम लोग, बिकॉज नन ऑफ देम इज कंप्लीटली डोमिनेंट, उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। वन एलील कैन नॉट सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर एलील। अगर कोई डोमिनेंट है तो वो दूसरे को सप्रेस करेगा, जैसे कि टॉलनेस और ड्वार्फनेस। अगर कोई टॉलनेस का जीन है तो वो ड्वार्फनेस को सप्रेस करेगा, मतलब ऑफ कोर्स द प्लांट विल बी टॉल। अगर वॉयलेट और व्हाइट फ्लावर है, वॉयलेट फ्लावर इज द डोमिनेंट जीन, तो वॉयलेट फ्लावर व्हाइट कलर को सप्रेस करेगा, व्हाइट कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। येलो एंड ग्रीन में से येलो विल सप्रेस द ग्रीन कलर। ओके, सो वन एलील नॉर्मली सप्रेसेस द अदर एलील, इसीलिए जो सप्रेस करता है वो डोमिनेंट। तो बरोबर उत्तर सांगतो। ओके, बट इनकम्प्लीट someone has okay सकाळी कसं धावतोस लगेच टीव्ही बघायला लेक्चरला? ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, वन एलील कैन नॉट सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर एलील। एक एलील, कोई भी दोनों में से एक एलील उतना केपेबल नहीं है कि वो दूसरे को सप्रेस कर सके, मींस इट इज नॉट डोमिनेंट कंप्लीटली, दैट इज व्हाई वी कॉल इट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो इसमें क्या रिजल्ट आएगा, देयर विल बी एन इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन इन द F1 हाइब्रिड। F1 हाइब्रिड में दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स आएंगे। ओके, अगर दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ऑफ कोर्स इट विल बी अ मिक्सचर। अगेन जीन्स मिक्स नहीं हो रहे, जीन्स मिक्स होने में और दोनों के कैरेक्टर्स आके वो कॉम्बिनेशन मिक्स इज अ इंटरमीडिएट, उसमें फर्क है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, वी आर टेकिंग द फ्लावर ऑफ मिराबिलिस जलापा। ओके, ये जो फ्लावर है मिराबिलिस जलापा, ओके उन लोगों ने फ्लावर नहीं दिखाया, बट सॉरी, ओके सॉरी, कौन सा पेज था? One minute. Okay. Okay. हाँ, so we are taking ये जो प्लांट लिया है मिराबिलिस जलापा। ओके, अभी उसमें यू हैव अ रेड फ्लावर्ड प्लांट, पूरा रेड फ्लावर्स वाला प्लांट है, कैपिटल आर जिसका जीनोटाइप होगा, एंड यू टेक अ व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट जिसका जीनोटाइप होगा स्मॉल आर। ओके, सो सेम हम लोग ने लिया है जैसे पी प्लांट का लिया था, बट यहाँ पे फर्क क्या है, पी प्लांट में डोमिनेंस है, तो वॉयलेट फ्लावर और व्हाइट फ्लावर में वॉयलेट फ्लावर पूरा डोमिनेंट है, तो नेक्स्ट जनरेशन में सारे वॉयलेट फ्लावर्स दिखेंगे। बट मिराबिलिस जलापा में ओके, अगर हम लोग ने पूरा एक रेड फ्लावर प्लांट लिया और उसको क्रॉस किया विद अ व्हाइट फ्लावर प्लांट, ओके, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? द रिजल्ट विल नॉट बी, रिजल्ट क्या आना चाहिए, रेड। अगर रेड डोमिनेंट हो तो रेड फ्लावर्स आने चाहिए, अगर व्हाइट डोमिनेंट है तो सारे व्हाइट आने चाहिए, बट फ्लावर्स नेक्स्ट जनरेशन के होते हैं पिंक कलर्ड। ओके, तो पिंक कलर्ड फ्लावर्स मतलब रेड कलर का फ्लावर भी अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है, वो अपना रेड कलर एक्सप्रेस कर रहा है, और जो व्हाइट कलर प्लांट है, व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट, वो भी अपना व्हाइट कलर एक्सप्रेस कर रहा है। तो दोनों कलर्स एक्सप्रेस होने की वजह से रेड एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन इज गिविंग यू पिंक कलर्ड फ्लावर्स। इसका ये मतलब नहीं है कि जीन्स मिक्स हो रहे हैं, उनके जो कलर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इन द फिनोटाइप, उनका कॉम्बिनेशन होके यू आर गेटिंग पिंक कलर्ड फ्लावर्स। ओके, तो नेक्स्ट जनरेशन में कॉम्बिनेशन होगा कैपिटल आर स्मॉल आर। सो लेट अस सी इन द नेक्स्ट फिगर। ये देखो इन लोग ने जो ओके दे हैव शोन पेरेंट्स, तो पेरेंट्स तो हम लोग ने प्योर यूज किए थे, रेड फ्लावर्स कैपिटल आर जिसका गैमेट होगा कैपिटल आर, दोनों सेम है। व्हाइट फ्लावर प्लांट्स के साथ उसको क्रॉस किया है जिसका कॉम्बिनेशन, जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन है स्मॉल आर, उसमें से एक आर लिया जाएगा गैमेट्स में, तो नेक्स्ट जनरेशन में कॉम्बिनेशन होगा कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके,
बट ये कैपिटल आर स्मॉल आर जो कि रेड होना चाहिए था, बिकॉज रेड इज कैपिटल, रेड अगर कैपिटल है मतलब रेड कलर इज द डोमिनेंट कलर, बट यहाँ पे रेड कलर डोमिनेंट पूरे तरीके से डोमिनेंट नहीं है, ओके वो पार्शियली डोमिनेंट है, इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है, और व्हाइट भी अपना थोड़ा सा इट इज नॉट एबल टू सप्रेस इटसेल्फ, तो जो फ्लावर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं दोज आर पिंक फ्लावर्स, ओके। सो दिस इज अगेन अ ये फर्स्ट डिविएशन है मेंडेलियन जेनेटिक्स की। अभी अगर F1 जनरेशन पिंक फ्लावर्स वाले को हम लोग सेल्फिंग करते हैं, जैसे कि हम लोग नॉर्मल करते हैं, ओके तो सेल्फिंग के बाद हम लोग को what we are going to get in the next generation, ये देखो ये दो गैमेट्स है, कैपिटल आर स्मॉल आर, मेल एंड फीमेल, we will get capital R red, capital R small r pink and small r white। मतलब जो थर्ड जनरेशन है F2 जनरेशन, ओके उसमें हम लोग को नॉर्मली क्या मिलते हैं, दो ही वैरायटीज मिलते हैं, ओके जैसे टॉल एंड ड्वार्फ में हम लोग को रेशियो क्या मिला था, 3:1 का रेशियो, इफ यू रिमेंबर फिनोटिपिक रेशियो था 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो था 1:2:1। इज दैट क्लियर, याद है सबको? Yes, टॉल ma'am. एंड ड्वार्फ के प्लांट के एक्सपेरिमेंट में F2 जनरेशन में हम लोग को 4 में से 3 टॉल प्लांट्स मिलते हैं, ओके और एक ड्वार्फ प्लांट है, सो द फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1, बट यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो वी आर गेटिंग 1 रेड 2 पिंक 1 व्हाइट, क्योंकि 3 वैरायटीज मिल रहे हैं हम लोग को, तो फिनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो वहां भी हम लोग को कैपिटल टी एक था, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 थे एंड स्मॉल टी एक था, तो जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 था। यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो सेम है, वैसे ही है जैसे टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स का है, 1 कैपिटल आर 2 मिक्सचर मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर हाइब्रिड एंड 1 स्मॉल आर मतलब जो रिसेसिव। तो यहाँ पे जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम मिल रहे हैं, जो कि मेंडल एक्सपेरिमेंट में सेम नहीं थे, वहां पे फिनोटिपिक रेशियो 3:1 ही होता था हर एक्सपेरिमेंट में, कोई भी कैरेक्टर लो, ओके कैन यू हियर मी? नहीं सुनाई दे रहा है ठीक से? बीच बीच में आवाज अटक रही है, मतलब ब्रेक हो रहा है? Yes, ओके ma'am. ओके ओके फाइन, ठीक है, okay I'll just repeat this part, okay so in Mendel's experiment it was found that the genotypic ratio was 3:1, sorry the phenotypic ratio was 3:1, okay 3 tall plants and 1 dwarf plant, and the phenotypic ratio was 1:2:1 deviation में, okay जीनोटिपिक रेशियो सेम है जो मेंडल का था, बट फिनोटिपिक रेशियो अलग हो गया, फिनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 मिल रहा है यहाँ पे, ओके तो ये फर्स्ट डिविएशन है फ्रॉम मेंडेलियन जेनेटिक्स, ओके दिस इज अ न्यू मेंडलिज्म, दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओके ये इंट्राजेनिक इंटरैक्शंस में आता है, इंट्राजेनिक मतलब जीन के अंदर कुछ इंटरैक्शंस हो रहे हैं, वो लोग अपने आप को पूरी तरीके से डोमिनेंट प्रूव नहीं कर पा रहे, पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। इज दिस क्लियर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस? Yes, ma'am. फाइन, Yes, ma'am. ओके ओके नेक्स्ट जो इंट्राजेनिक इंटरैक्शन है, ओके विच इज आल्सो अ डिविएशन जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में नहीं देखा गया था, दैट इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस मतलब दोनों भी डोमिनेंट है, ओके अगर दोनों डोमिनेंट है देन व्हाट विल बी इन द नेक्स्ट जनरेशन, so let us see what is codominance. Okay in codominance both the alleles, okay there is genes of an allelomorphic pair express themselves equally in F1 hybrids. so मेंडल का एक्सपेरिमेंट में F1 में ओनली ऑफ कोर्स उसमें दो डोमिनेंट नहीं थे, हर एक्सपेरिमेंट में एक डोमिनेंट होता था और एक रिसेसिव होता था, ओके एंड F1 जनरेशन में डोमिनेंट के कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते थे, ओके बट यहाँ पे इफ बोथ द पेरेंट्स आर डोमिनेंट then what will then जो भी characters है they will be expressed equally in the next generation. F1 hybrids में दोनों के characters आएंगे, okay such alleles which are able to express themselves equally independently in the hybrids are called codominant. ये दोनों भी characters next generation में express होंगे, equally express होंगे and independently express होंगे, they are not dependent on दूसरा character क्या है,
तो इसको बोलेंगे कोडोमिनेंट. को मींस बोथ टुगेदर. ओके, सो लेट अस सी दिस एग्जांपल. ओके, ये कैटल का एग्जांपल दिया है. ओके, सो वी हैव रेड कैटल एंड व्हाइट कैटल. ओके, ऑफ कोर्स एक जो रेड ली है दैट इज अ फीमेल, व्हाइट है दैट इज अ मेल. ओके, of course here we have different because animals are unisexual, तो एक फीमेल एक मेल लेना है. ओके, तो रेड काउ जो है उसमें जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कैपिटल आर कैपिटल आर. ओके, एंड जो व्हाइट बुल है द मेल, उसका कॉम्बिनेशन है कैपिटल डब्ल्यू, क्योंकि रेड कलर भी डोमिनेंट है. जो उनका जो कोट कलर है, ओके, जो स्किन उनका है दैट इज कॉल्ड द कोट, उसका जो कलर है both are dominant, red as well as white. So next generation में, okay, we will have two possibilities. We can have a white animal, it can be a cow or a bull, male, female, white with red spots on it, or it can be red with white spots on it. Okay, see the two figures. ये जो red with white का combination है इसको रोन बोलते हैं, ROAN, रोन. ओके, तो दोनों को भी रोन बोलते हैं. व्हाइट के ऊपर रेड स्पॉट्स भी हो सकते हैं, रेड के ऊपर व्हाइट स्पॉट्स भी हो सकते हैं. ओके, अभी फर्स्ट जो रोन है कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू. ओके, अज्यूमिंग इट इज अ फीमेल, उसमें जो गैमेट्स है वो दो तरीके के गैमेट्स दिख रहे हैं. एक कैपिटल आर भी है, कैपिटल डब्ल्यू भी है. जो दूसरा रोन है दैट इज द मेल, उसमें F1 जनरेशन का, उसमें भी कैपिटल आर एंड कैपिटल डब्ल्यू है. अगर इन दोनों का क्रॉसिंग करते हैं, इन दोनों का मतलब ऑफ कोर्स इस जनरेशन के एक फीमेल और एक मेल का अगर हम लोग क्रॉसिंग या हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, ओके, तो वी गेट 4 पॉसिबिलिटीज. ओके, नेक्स्ट जनरेशन में वी कैन हैव कैपिटल आर मतलब वापस पेरेंट के जैसा रेड कोट वाला काउ प्रोड्यूस होगा. Okay, we can have capital W, again parent generation जैसा white produce होगा. And we can have the other two combinations, capital R, capital W, जिसमें white coat with red spots हो सकता है या red coat with white spots हो सकता है. That means roan. मतलब F2 generation में parental combinations भी दिख रहे हैं और F1 generation के combinations भी दिख रहे हैं. Again, if you see the phenotypic ratio, जो कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में 3:1 होना चाहिए था, यहाँ पे रेड 1 है, रोन 2 है एंड व्हाइट 1 है. So again we are getting the phenotypic combination as 1:2:1 and genotypic combination is also 1:2:1. मतलब ये जो deviations है इसमें phenotypic ratio and genotypic ratio same है, 1:2:1. Okay, whereas मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में जीनोटिपिक रेशियो अलग होता था, फिनोटिपिक अलग होता था. फिनोटिपिक वाज ऑलवेज 3:1, जीनोटिपिक वाज ऑलवेज 1:2:1. इसका एक मिनट एक्सप्लेनेशन अगर है तो we'll read. Okay, so we'll just read through. Classic example of codominance. Okay, this is one of the most common examples is coat color in cattle. There are two types, one with red coat मतलब red color hair है actually वो, and other with white coat, that means with white hair. When red cattles are crossed with white cattles, red cattles मतलब capital R genotype, white cattles are capital W genotype. F1 hybrids are roan. F1 में जो सारे hybrids हैं they are all roan in color. Roans have the mixture of red and white color hair. Thus both the traits are expressed. So roans में you can see कि दोनों भी colors equally express हो रहे हैं. It can be white with red spots या red with white spots. दोनों colors आ रहे हैं उस generation में. And in F2 generation, red, roan and white तीनों भी combinations produce हो रहे हैं in the ratio 1:2:1. So this is called codominance. Co means दोनों, both are dominant. Okay, and in codominance we can see that the genotypic and phenotypic ratios are identical. जो genotypic ratio है वो ही phenotypic ratio है, that is 1:2:1 का ratio. Okay, so this was about codominance. एक और ये है, okay, multiple alleles, ये भी इंट्राजेनिक में आता है. So let us see what is multiple alleles. Okay,
मल्टीपल एलील्स, एलील्स मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन, तो मल्टीपल एलील्स मतलब एक जीन के बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। जैसे मेंडल को सिर्फ 2 ही फॉर्म्स दिखे, ओके, टॉल ड्वार्फ, ग्रीन येलो, वॉयलेट व्हाइट, बट एक जीन के अलग अलग फॉर्म्स, 2 से ज्यादा फॉर्म्स भी हो सकते हैं। ओके, नॉट ऑलवेज, देयर आर एक्सेप्शंस। More than 2 alternative forms, that is alleles of a gene in a population occupying the same locus on a chromosome or its homologue are called multiple alleles. मतलब एक जीन के 2 से ज्यादा फॉर्म्स अगर सेम लोकस पे है, सेम लोकस मींस क्रोमोसोम पे हर जीन का पोजीशन सेम रहता है, ओके, सो देन सच alleles are called multiple alleles. Multiple alleles arise by mutation. अभी multiple alleles are not normal, ये म्यूटेशन से अराइज करता है। लास्ट लेक्चर में किसी ने मुझे पूछा था कि म्यूटेशन अगर हुआ तो क्या होगा, ओके, सो आई टोल्ड यू कि मेंडल ने जब किया था एक्सपेरिमेंट तब देयर वर नो म्यूटेशंस, ओके, कोइंसिडेंटली, लकीली, क्योंकि अगर म्यूटेशंस होते तभी तो शायद उसके एक्सपेरिमेंट्स वो कंफ्यूज हो जाता, या ही वुड नॉट बी एबल टू मेक ऑल दीज लॉज कॉन्फिडेंटली। सो थैंकफुली वी कैन से कि उस वक्त कोई म्यूटेशन नहीं अकर हुआ ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट्स, ओके, बट अगर म्यूटेशंस होते हैं तो मल्टीपल एलील्स कैन एग्जिस्ट, ओके। तो लास्ट टाइम जिसने भी क्वेश्चन पूछा था, ओके, दैट वाज अ गुड क्वेश्चन, और उसी का ही अभी टॉपिक है कि अगर म्यूटेशंस होते हैं किसी भी जीन में तो 2 एलील्स के जगह यू कैन हैव मोर देन 2 एलील्स आल्सो, सो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल एलील्स, ओके। मल्टीपल एलील्स अराइज बाय म्यूटेशन ऑफ वाइल्ड टाइप ऑफ जीन। वाइल्ड टाइप मतलब जो ओरिजिनल जीन होता है उसमें जब म्यूटेशन होता है तो ओरिजिनल जीन को बोलते हैं वाइल्ड टाइप जीन, और जो जीन चेंज हुआ है उसको बोलते हैं म्यूटेटेड जीन। A gene can mutate several times, producing a series of alternative expressions. एक जीन का म्यूटेशन हो सकता है कि बहुत बार म्यूटेशन हो के अलग अलग एक्सप्रेशंस प्रोड्यूस हो, ओके। Different alleles in a series show dominant recessive relation और may show co-dominance और incomplete dominance among themselves. अभी देखो अगर बहुत सारे alleles है, दो alleles में हम लोग को पता है कि एक dominant है एक recessive है, या तो अभी जैसे हम लोग ने देखा दोनों भी co-dominant हो सकते हैं या दोनों incomplete dominant हो सकते हैं। तो मल्टीपल एलील्स में भी कोई भी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। मल्टीपल एलील्स में से एक एलील पूरा डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा, या तो दोनों भी डोमिनेंट है, दोनों तीनों जितने भी सारे डोमिनेंट है, या तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, एनीथिंग, एनी पॉसिबिलिटी कैन टेक प्लेस, ओके। बट वाइल्ड टाइप इज ऑलवेज डोमिनेंट। वाइल्ड टाइप मतलब जो ओरिजिनल जीन है, अगर एक ओरिजिनल जीन है और एक अगर म्यूटेटेड जीन है तो always the original gene will be selected, the wild type gene, because that is the original gene, that is the dominant gene. Original gene is always the dominant gene. जो म्यूटेटेड जीन है इसीलिए हम लोग में भी म्यूटेशंस होते रहते हैं। We are exposed to so much of chemicals, we are exposed to so much of radiations, okay, food में chemicals, मोबाइल के radiations, so much, तो हम लोग में mutations होते रहते हैं, but okay, thankfully mutations are not accepted. mutations को वो जो cells है उसको destroy किया जाता है, या तो gametes में भी उसको accept नहीं किया जाता, या तो zygote form होने के बाद भी अगर defective gene है तो body उसको किसी ना किसी stage पे उसको destroy करती है। That is the reason why you have miscarriages in females, okay, ki it does not happen just like that, okay. Most of the time the body destroys it, body उस growing embryo को destroy करता है क्योंकि उसमें defective, और वो defect बड़ा है, okay. Of course अगर नहीं destroy कर पाए, and if of course it goes on, then the जो भी defect है that will be forever, okay. So better than that the body tries to maximum destroy the defect, जो भी mutated gene या defective gene वाला cell है, embryo है, okay. So wild type is always dominant. अभी example हम लोग देखेंगे multiple alleles का in Drosophila, okay. In Drosophila a large number of multiple alleles are known. The size of the wings, okay, just wings है Drosophila के, it can be normal to vestigial, that is no wings. So normal wings वाले भी है, no wings वाले भी है, बीच में अलग अलग varieties भी है. So let us see. जो no wings वाले they are called stumps, is due to one allele, that is VG in homozygous condition.
एक मिनट, यहाँ पे इन लोगों ने ये देखो यहाँ पे दिखाया है. ओके, सो यू कैन सी द टेबल हियर 3.3 की उनका जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या है एंड व्हाट इज द डिफरेंस. सो फर्स्ट वन यू कैन सी दैट ओके द जीनोटाइप इज VG प्लस. ओके, एंड यू कैन सी दैट ये जो ड्रोसोफिला है उसके नॉर्मल विंग्स हैं. ओके, सेकंड VGNI, NI मतलब उसके निक्ड विंग्स है. निक्ड यू कैन सी सम चेंजेस इन जो शेप. ओके, थोड़ा सा व्हाट यू कैन से broken type. So here what has happened is जो allele है, okay, there has been a mutation in the wild type allele and that is why ये wings ऐसे हुए. Third, notched wings. Okay, again the wing pattern has changed. Fourth, strapped wings. And fifth में there are no wings at all. Okay, so accordingly उनका genotype भी, genotype is how you name it. So VG plus is normal, VGNI is nicked, okay, VGNO is notched, VGST is strapped and सिर्फ VG मतलब no wings at all. So ये एक ही जीन के अलग अलग एलील्स है. नॉर्मली 2 एलील्स होते हैं, यहाँ पे हम लोग को 5 एलील्स दिख रहे हैं, 5 अलग अलग वैरायटीज दिख रहे हैं, मतलब 5 अलग अलग फिनोटाइप्स दिख रहे हैं. ओके, एक एलील के वजह से, एक जीन के वजह से. सो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल एलील. ओके, so let's just read. So the size of the wings from normal wings to vestigial wings, that is no wings, okay, that is just stumps, is due to one allele. That allele is VG. In homozygous condition, the normal wing is wild type while the vestigial wing is recessive. So normal wing, okay, the original wing is the wild type wing, matlab VG plus, and vestigial wing recessive हो जाता है, सिर्फ VG जिसमें wings produce नहीं हो रहे. Okay. मल्टीपल एलील्स का एक और जो एग्जाम्पल है, बट ये एग्जाम्पल हम लोग करेंगे व्हेन वी डू द सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, इट इज द ABO ब्लड ग्रुपिंग. ओके, ABO ब्लड ग्रुपिंग जो है, ब्लड ग्रुप्स कैसे फॉर्म हो रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, A, B, ABO, अगेन दैट इज बिकॉज ऑफ मल्टीपल एलील्स. ओके, वी ऑल्सो हैव डिफरेंट एलील्स, मतलब सेम ब्लड ग्रुप के लिए वी हैव 2 or 3 different alleles. So based on that, the blood group can be A, B, O or AB. इसका डिटेल हम लोग तब देखेंगे जब सर्कुलेटरी सिस्टम करेंगे. सो वी हैव फिनिश्ड 3 deviations. ओके, फर्स्ट हम लोग ने देखा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सेकंड कोडोमिनेंस और थर्ड मल्टीपल एलील्स. और ये तीनों भी इंट्राजेनिक इंटरैक्शंस है. ओके, दैट इज एक जीन के अंदर हो रहे हैं. The next type of interactions which we can see here is intergenic. Inter मतलब 2 genes में, okay, or between different genes. So it occurs between alleles of different genes present on the same or different chromosome. अलग genes है, okay, उनमें interactions हो रहा है. They are either on the same chromosome or they can be on different chromosomes also. इसमें भी 4-5 अलग अलग deviations है जिसमें से हम लोग कुछ study करेंगे. Pleiotropy, polygenes, epistasis, supplementary and complementary genes. इसमें से we will study, I guess 2-3 तुम लोग को detail में दिए हैं. So first type intergenic interaction, which is called pleiotropy. समझ रहे सबको, कुछ डाउट है? No, ma'am. Okay, fine. Fast. I hope it is not fast or समझ में आ रहा है. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay. So anytime you want, you feel I'm going fast या कुछ वापस repeat करना है, you let me know. Okay, because this is a heavy topic. This is genetics and online में it is more difficult again because I cannot see all of you because I have the mobile here. So, okay, anyways. So pleiotropy, starting with pleiotropy, when a single gene controls 2 or more different traits. Okay. अभी मेंडल ने क्या ये किया था कि gene controls one trait. Okay, so now one gene is controlling 2 or more than. मैम Okay. वॉइस ब्रेक हो रहा है. हाँ हाँ, हाँ, एक मिनट, I'll just change my place.
ओके अभी मैम ठीक है मतलब या वॉइस ब्रेकिंग हो रहा है। एक मिनट जस्ट गिव मी अ मिनट आई डोंट नो शायद कुछ नेटवर्क ये हो रहा है इश्यू है सुनाई दे रहा है अभी Yes, ma'am. हाँ यस मैम। सबको कि हाँ ब्रेक हो मैम। रहा है मेरा वो ओके नो मैम। ओके अगर ब्रेक हो रहा होगा तो यू लेट मी नो okay so going to pleiotropy when a single gene controls two or more different traits एक जीन दो traits या दो से ज्यादा traits को जब कंट्रोल करता है it is called pleiotropic gene and the gene is called the pleiotropic gene और जो phenomenon है उसको बोलेंगे pleiotropy या pleiotropism एक जीन दो तीन traits को कंट्रोल करता है okay again इसमें phenotypic जब भी कोई deviation होता है the ratios change नॉर्मल रेशियो वी नो की फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1 कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम लोग ने देखा 1:2:1 हो गया प्लियोट्रॉपी में द फिनोटाइपिक रेशियो बिकम्स 1:2 उल्टा हो जाता है 3:1 की जगह 1:2 हो जाता है ओके बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द रिसेसिव होमोजाइगोट ओके द डिजीज अभी ये एग्जांपल के लिए हम लोग जो एग्जांपल लिया है प्लियोट्रॉपी के लिए it is the disease sickle cell anemia okay sickle cell anemia is caused by a gene HBS okay hemoglobin में जो hemoglobin में there is a defect hemoglobin production में okay now first of all we know what is hemoglobin is a molecule which carries oxygen in the body okay RBCs में होते हैं hemoglobin iron containing protein है okay वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है जनरली वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरीज 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ओके ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है अगर सिकल सेल अनीमिया है तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है बिकम्स लाइक अ सिकल मतलब ऐसा व्हाट यू कैन से ऐसा मून शेप्ड हो जाता है प्रेस हो जाता है ओके अगर एक व्हीकल में एक टैक्सी में 4 लोग बैठे हैं नॉर्मली अगर वो टैक्सी दब गई है या समथिंग हैज वो डिफेक्ट हो गई है मे बी पीछे की सीट पे कोई नहीं बैठ पाएगा देन ओनली वन पर्सन कैन सिट ओके तो समथिंग सिमिलर हैपेंस व्हेन सिकल सेल एनीमिया टेक्स प्लेस जीन में डिफेक्ट की वजह से हीमोग्लोबिन का शेप चेंज हो जाता है अगर हीमोग्लोबिन 2 या 1 ही कैरी कर पाएगा या मे बी इट मे नॉट बी एबल टू कैरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ओके तो ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है सो The disease sickle cell anemia is caused by gene HBS. नॉर्मल और हेल्दी जीन को हम लोग नाम देंगे HbA. ओके मतलब ये नॉर्मल है नॉर्मल इज ऑलवेज डोमिनेंट ओके याद रखो कोई भी नॉर्मल जीन हमेशा डोमिनेंट होती है द कैरियर्स ओके द कैरियर्स अभी कैरियर्स किसको बोलेंगे उसके लिए हम लोग थोड़ा पहले ये टेबल देख लेते हैं ओके इसमें आधा ही दिया है 1 मिनट लेट मी जस्ट चेक अहेड ओके हीमोफिलिया का एग्जांपल है सी व्हाट आर कैरियर्स ओके कैरियर्स वो होते हैं जिनमें डिफेक्टिव जीन तो है बट उनमें वो डिफेक्ट नहीं है ओके सो हो सकता है कि इन एनी ऑफ अस देयर कुड बी अ डिफेक्टिव जीन बट डिफेक्ट क्यों नहीं है बिकॉज जो दूसरा जीन है दैट इज अ डोमिनेंट वन दैट इज अ नॉर्मल वन वाइल्ड टाइप ओके
सो ऐसे लोग जिनमें वो डिफेक्टिव जीन खुद तो सफर नहीं करेंगे, बट वो लोग नेक्स्ट जनरेशन में वो डिफेक्ट, ओके। सो कैरियर्स आर हेट्रोजाइगोट्स, क्योंकि कैरियर्स में जो नॉर्मल लोग हैं उनमें दोनों जीन्स HBA होंगे, ओके। दो जीन्स होते हैं हमेशा जोड़ी में होते हैं, तो अगर हेल्दी इंडिविजुअल है तो उसमें दोनों जीन्स सेम होंगे, इट विल बी HBA. अगर कोई सफर कर रहा है हीमोफिलिया सिकल सेल एनीमिया से, तो उसका HBS होगा, वो तो जिंदा ही नहीं रहेगा इंसान। अगर कैरियर है तो उसमें कॉम्बिनेशन होगा HBA-HBS, दोनों अलग अलग कॉम्बिनेशन होंगे, दैट मीन्स दे विल बी हेट्रोजाइगोट्स। हेट्रोजाइगोट्स मीन्स अलग अलग कॉम्बिनेशन होगा जीन्स का। ओके अभी कैरियर्स में दे विल शो साइंस ऑफ माइल्ड एनीमिया, ओके। कैरियर्स में हो सकता है क्योंकि उनमें मेजर प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उनका जो मेन जीन है, जो डोमिनेंट जीन है, दैट इज अ नॉर्मल जीन, ओके। सो सिकल शेप मतलब हाफ मून शेप हो जाता है अंडर एबनॉर्मली लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। तो ऐसे लोगों को तकलीफ कब होगी? इफ दे गो टू अ हिल स्टेशन, इफ दे गो टू सम ट्रैकिंग वगैरह पे अगर जाएंगे और वहां पे ऑक्सीजन, अगर उनका कम ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, ओके, या ऐसे जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस है जिसमें ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, समथिंग लाइक दैट हैपेंस, देन दे विल हैव अ प्रॉब्लम। बट अदरवाइज जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है, दे विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, ओके। तो कैरियर्स में थोड़ा बहुत ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगा, अनीमिया होगा, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी होगी, ओके। बट व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट जनरेशन? तो यहाँ पे देखो, सिकल सेल कैरियर विद सिकल सेल कैरियर, मतलब दिस इज अ मैरिज बिटवीन टू सिकल सेल कैरियर्स। सो कोइंसिडेंटली, ओके, अनफॉर्चुनेटली अगर दो कैरियर्स में शादी हो जाती है, ओके, अभी ये देखो जो फर्स्ट इंसान है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, दैट इज नॉट राइट नाउ, HBA-HBS, ओके, दूसरे का भी कॉम्बिनेशन है HBA-HBS, ओके। नाउ ओके, अभी दो ऑप्शंस दिए, एक कैरियर की जो शादी है, इट इज 1 मिनट, ओके। सो HBA-HBS मतलब इसके दो जीन्स है, HBA भी है, HBS भी है, ओके, दूसरे के भी HBA एंड HBS है। सो नाउ इफ अगर उनकी शादी हो जाती है एंड जो जीन्स का कॉम्बिनेशन नेक्स्ट जनरेशन में प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों में, अगर वो कॉम्बिनेशन HBA-HBA का कॉम्बिनेशन हो रहा है, ओके, यू कैन सी द फर्स्ट वन, HBA-HBA का अगर कॉम्बिनेशन आ जाता है, एंड कॉम्बिनेशन कोई भी हो सकता है, बिकॉज एनी जीन कैन गो टू द नेक्स्ट गैमेट्स में कोई भी जीन जा सकता है। तो अगर HBA-HBA का कॉम्बिनेशन हो रहा है तो द चाइल्ड विल बी अ नॉर्मल चाइल्ड, ओके, उसमें कोई बीमारी नहीं होगी। अगर कॉम्बिनेशन HBA-HBS का हो रहा है, जो कि दो पॉसिबिलिटीज है, ओके, दो जगह पे हम लोग को HBA-HBS दिख रहा है, ओके। HBA-HBS मतलब ये जो इंडिविजुअल होगा, ये जो बच्चा बॉर्न होगा, उसमें डिफेक्टिव जीन तो है, बट उसमें वो डिफेक्ट नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज उसकी दूसरी जीन नॉर्मल है, HBA जीन उसके पास है, विच इज अ नॉर्मल जीन विच विल बी एक्सप्रेस्ड, जो वाइल्ड टाइप जीन है, बट उसमें डिफेक्टिव जीन भी है, मतलब ये कैरियर कहलाएगा। तो अगर 4 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि एक नॉर्मल हो, ओके, 2 सिकल सेल कैरियर्स होंगे, और ये जो सॉरी, ओके, और ये जो थर्ड इंडिविजुअल है, जो फोर्थ चाइल्ड है, ओके, यू कैन सी दैट द कॉम्बिनेशन इज HBS-HBS। HBS-HBS का कॉम्बिनेशन वाला चाइल्ड, मतलब सिकल सेल अनीमिया वाला चाइल्ड, मदर को है तो ऑफस्प्रिंग्स को, सी अगर सिर्फ मदर को है, ओके, जैसे यहाँ पे हम लोग ने देखा कि 2 कैरियर्स है, अगर एक कैरियर है और एक अगर नॉर्मल है, अगर एक इंडिविजुअल नॉर्मल है तो नहीं होगा, ये बीमारी नहीं होगी। हाँ, कैरियर हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में, बिकॉज अगर एक भी कैरियर है तो उसकी जो जीन है HBS, वो किसी ना किसी बच्चे को जा सकती है। हाँ, अगर एक बच्चा हुआ एंड लकीली वो जीन नहीं गई तो दैट इज ऑल लक, ओके, बट चांसेस है कि वो कैरियर बने, बट वो बच्चा मरेगा नहीं, उस बच्चे को सिकल सेल अनीमिया नहीं होगा। बट योर यू कैन सी कि अगर दोनों भी कैरियर्स है और दोनों के अगर बैड जीन्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है, डिफेक्टिव जीन्स का कॉम्बिनेशन, ये जो लास्ट कॉम्बिनेशन दिख रहा है, इट इज HBS-HBS का कॉम्बिनेशन, बच्चा सिकल सेल अनीमिया वाला होगा, उसका जो हीमोग्लोबिन होगा उसका वो मून शेप का होगा, मून शेप होगा तो ऑक्सीजन इट विल नॉट बी एबल टू कैरी,
कैरियर से क्या होगा? ओके सी, अगर एक इंसान कैरियर है दोनों में से, मदर या फादर में से, तो नेक्स्ट जनरेशन में दो पॉसिबिलिटीज है, या तो नॉर्मल बच्चे होंगे या तो कैरियर बच्चे होंगे, या तो दो तीन बच्चे तो एक हाथ दो नॉर्मल होंगे, एक हाथ दो कैरियर्स होंगे, मिक्स। ओके बट कोई सिकल सेल अनीमिया का डिजीज लेके नहीं पैदा होगा, क्योंकि अगर वो सिकल सेल अनीमिया का डिजीज लेके पैदा हुआ तो वो मर जाएगा पैदा होते ही, बिकॉज द चाइल्ड विल बी बॉर्न। सी बॉर्न क्यों होगा? क्योंकि जब तक वो मदर के अंदर है, उसको मदर के ब्लड में से उसको सब मिल रहा है, क्योंकि मदर इज नॉट, मदर को सिकल सेल अनीमिया नहीं है, मदर सिर्फ कैरियर है। तो मदर के ब्लड में से उसको हीमोग्लोबिन में से उसको ऑक्सीजन मिल रहा है। जैसे ही वो बेबी बॉर्न होता है, उसको अपने खुद के हीमोग्लोबिन से इट हैज टू सर्कुलेट ऑक्सीजन, और उसके खुद के हीमोग्लोबिन में देयर इज द शेप इज ऑल्टर्ड। उस मून शेप की वजह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अंदर फिट नहीं होंगे, द बॉडी विल नॉट बी एबल टू सप्लाई ऑक्सीजन, द चाइल्ड विल डाई। बिकॉज द चाइल्ड विल डाई, इसीलिए रेशियो देखो कैसा है, एक्चुअली द रेशियो इज 1:2:1, और जो लास्ट वाला 1 है वो तो है ही नहीं ना, वो तो सर्वाइव ही नहीं करेगा बच्चा। दैट इज वाई इसमें जो रेशियो बनता है दैट इज अ 1:2 रेशियो, बिकॉज लास्ट का 1 does not exist, it does not survive. Okay, so अगर एक कैरियर है, अभी कैसे पता चलेगा? पता नहीं चलेगा अभी। अगर हम लोग में से कोई भी अगर कैरियर है तो वी डोंट नो, क्योंकि हम लोग को नहीं पता कि हम लोग के जीन्स का क्या कॉम्बिनेशन है। ना तो हम लोग अपने जीन्स का स्टडी कर सकते हैं, जीन्स का स्टडी ह्यूमन जीन मैपिंग बोलते हैं जिसको, उसको करने एक का करने के लिए इट टेक्स इयर्स। ओके, या देयर आर स्पेशल टेस्ट, बट वी डोंट नो, और किसी को इतना टाइम भी नहीं है और किसी को इतना पैसा भी खर्च करने के लिए पॉसिबल नहीं है कि अपने जीन्स में कुछ डिफेक्ट्स है कि नहीं पता करने के लिए, इफ इट इज अ कैरियर। तो ऑप्शन यही होता है कि यू हैव टू, फर्स्ट थिंग, यू cannot get married to a person in the family में, cousins में, second cousins, मतलब जो related जो individuals है उनके साथ अगर शादी होती है तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि उनमें वो डिफेक्ट हो। क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि सपोज मम्मी के कजन भाई का बेटा है, उससे किसी की शादी हो रही है, ओके, तो मम्मी और कजन भाई और उनके मम्मी और कजन भाई, वो लोग रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स थे, हो सकता है उन दोनों में डिफेक्टिव जीन में और उसके वो दूर के कजन में आ गया वो डिफेक्ट, एंड उनके बच्चे अगर मैरी करते हैं, भले रिश्ता दूर का, वो कैरियर्स बनेंगे। ओके, सो देयर इज नो वे ऑफ फाइंडिंग आउट। फाइंडिंग आउट कब होगा? हाँ, अगर दो कैरियर्स की शादी होके अगर बच्चे में डिफेक्ट आ गया तो फिर पता चलता है कि हाँ दोनों पेरेंट्स में वो डिफेक्ट है, क्योंकि बच्चे में जेनेटिक डिफेक्ट तभी आते हैं जब वो दोनों पेरेंट्स में हो। ओके ओके फाइन। सो अगर अगर किसी बेबी में, अगर किसी चाइल्ड में कोई जेनेटिक डिफेक्ट दिख जाता है, सो इट मींस दैट दोनों पेरेंट्स में वो जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं। अगर जेनेटिक डिफेक्ट नहीं है, पता भी नहीं चलेगा, वी कैन नॉट नो कि हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। जेनेटिक चीजें तभी सामने आती है जब उसके इफेक्ट दिखे। इफेक्ट्स तभी दिखेंगे जब वो जीन ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा, ज्यादा होगा। जीन ज्यादा तभी होगा जब मदर एंड फादर दोनों भी उस जीन के लिए डिफेक्टिव होंगे। ओके, सो हियर वी कैन सी, यस, नहीं मैम, आपकी आवाज है ना, मतलब कौन, मतलब थोड़ी सेकंड के बाद है ना अपने आप फास्ट हो जा रहा है आवाज। ओके, आई थिंक यहाँ पे हम लोग वैसे भी टॉपिक खत्म हो गया है। ओके, वी विल स्टॉप हियर एंड एक काम करो, जस्ट गो थ्रू करो एंड टेल मी इफ देयर इज एनी डाउट, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क आई गेस इशू आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। एनीवेज, सो व्हाट, जो भी हम लोग ने टॉपिक्स किए आज, ओके, ये प्लियोट्रॉपी का एक लास्ट पार्ट बाकी है, आई जस्ट रीड इट। ओके, उसी का एक्सप्लेनेशन है। होमोजाइगोट्स विथ रिसेसिव जीन, that is HBS, dies of total anemia.
ओके अगर वो बेबी बॉर्न होती है जिसमें ये डिजीज प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज उसके दोनों पेरेंट्स का जो डिफेक्टिव जीन आ गया है तो वो मर जाता है. Does the gene for sickle cell anemia is lethal in homozygous condition? तो सेम जीन होमोजाइगस कंडीशन में लीथल है. होमोजाइगस कंडीशन मतलब अगर दोनों जीन्स सेम हो, दोनों जीन्स डिफेक्टिव हो तो द डिजीज इज लीथल. लीथल मींस ओके, लीथल मींस वो बच्चा मर जाएगा, वो नहीं बच पाएगा. वेरएज अगर सिंगल जीन प्रेजेंट हो तो इट विल सर्वाइव, वो कैरियर बन के रह जाएगा सिर्फ. ओके तो एक जीन के दो एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं, एक जीन के दो इफेक्ट्स दिख रहे हैं. अगर एक जीन अगर सिंगल प्रेजेंट है तो वो कैरियर बनेगा, उसमें ज्यादा कुछ उसको फर्क नहीं पड़ेगा उसकी हेल्थ में. अगर वो दो जीन्स है, सेम जीन के दो कॉपीज है, ओके दो कॉपीज वी कैन से, सिंगल कॉपी है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मल होगा इंडिविजुअल, थोड़ा बहुत कभी कुछ हेल्थ इश्यू होगा. अगर उसके दोनों कॉपीज है तो इट विल बी अ लीथल कंडीशन, वो बच्चा नहीं जिंदा रहेगा. ओके A marriage between two carriers will produce normal carriers and sickle cell anemic children. दो कैरियर्स में जब शादी होती है तो तीन तरीके के बच्चे पैदा होते हैं. ओके नॉर्मल बच्चे भी हो सकते हैं अगर नॉर्मल दोनों जीन्स होंगे तो, कैरियर बच्चे पैदा हो सकते हैं अगर एक जीन नॉर्मल और एक जीन डिफेक्टिव हो तो, और सिकल सेल बच्चे पैदा हो सकते हैं, सिकल सेल अनीमिया वाले जिनमें दोनों भी डिफेक्टिव जीन्स हो. ओके सिकल सेल अनीमिक्स विल डाई. ओके वो लोग तो मर जाएंगे, तो बचे कौन? कैरियर्स एंड नॉर्मल पीपल. तो रेशियो बनता है सिर्फ 1:2. ओके याद रखो वो लास्ट वाला 1 नहीं एग्जिस्ट करता बिकॉज वो लास्ट वाला 1 जो इंडिविजुअल है वो खुद ही नहीं बचता, तो दैट इज व्हाई वो रेशियो में इंक्लूड नहीं करेंगे. ओके हाँ वन थिंग ऑफ नोइंग द सिकल सेल एनीमिया, अगर उसका ब्लड का जैसे हम लोग ब्लड देते हैं फॉर स्टेनिंग पर्पस, ओके मलेरियल पैरासाइट वगैरह के लिए या सीबीसी टेस्ट के लिए ब्लड का एक सैंपल लेके उसका एक थिन फिल्म बना के यू कैन सी अंडर द माइक्रोस्कोप और काउंट किया जाता है WBC काउंट, RBC काउंट. तो उसमें यू कैन सी दैट द RBCs आर ऑल सिकल शेप, उसका शेप दिखेगा एंड यू कम टू नो दैट द चाइल्ड इज सिकल सेल अनीमिया का पेशेंट है, सफर कर रहा है. ओके बट ये तभी ये वो बट उसका कुछ फायदा नहीं होगा, वो माइक्रोस्कोप में से देखेंगे आइडेंटिफाई होगा बट द चाइल्ड विल नॉट सर्वाइव. उसको ब्लड देख के कुछ भी करके इट इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि उसका बॉडी का कोई भी ब्लड नॉर्मल नहीं है, पूरा सिकल सेल्ड है. इट इज नॉट पॉसिबल टू कीप ऑन गिविंग ब्लड थ्रू आउट लाइफ. ओके कोडोमिनेंस राइट, आई जस्ट एक्सप्लेन. कोडोमिनेंस में दोनों जो पेरेंट्स है वो डोमिनेंट है. अब तक हम लोग ने जितने भी टॉपिक्स देखे उसमें एक पेरेंट डोमिनेंट था और एक रिसेसिव था. सिकल सेल अनीमिया के डिफेक्ट्स, सिकल सेल अनीमिया जिसको होगा, सिकल सेल अनीमिया किसको होगा? उस बच्चे को होगा जिसमें दोनों कॉम्बिनेशंस HBS के आए हैं. ओके ये जो लास्ट कॉम्बिनेशन है HBS के कॉम्बिनेशंस है. अभी ये जो बेबी है उसके जो RBCs है उसमें जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का नॉर्मल फंक्शन है ऑक्सीजन सप्लाई करना, उसके सेल्स ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करेंगे, the cells will die of oxygen starvation. अपने हम लोग जब नाक बंद करते हैं तो यू कैन फील दैट बॉडी को ऑक्सीजन जब नहीं मिलता, ओके फॉर अ लॉन्ग टाइम लोगों को नाक बंद करके मर्डर किया जाता है. ओके तो कुछ मिनट तक जब बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलता द पर्सन डाइज. बाहर से नहीं पता चलेगा. ओके हाँ बाहर से कब पता चल सकता है कि कैरियर्स में भी बाहर से नहीं पता चलेगा बिकॉज बॉडी के सेल्स नॉर्मल होंगे. ओके दे विल जस्ट बी अ कैरियर. बाहर से तभी पता चलेगा जब ऐसा कोई बच्चा बॉर्न होता है उस फैमिली में. अगर ऐसा बेबी बॉर्न होता है जिसको सिकल सेल अनीमिया हो तब जाके पता चलता है कि पेरेंट्स के जीन्स में देयर इज अ डिफेक्ट इन दिस पर्टिकुलर जीन, वो भी उसी जीन का पता चलेगा. बाकी और कितने जीन्स है बॉडी में, ऑफ कोर्स नॉट नेसेसरी कि एक जीन में डिफेक्ट है तो और भी जीन्स में हो, बट तभी जाके पता चलेगा कि दोनों पेरेंट्स हैव अ डिफेक्ट, बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर्स. ओके नहीं तो बाहर से पता नहीं चलेगा. हाँ इट कुड हैपन दैट अगर किसी को बार बार अनीमिया हो रहा है, अनीमिया मतलब लो हीमोग्लोबिन, ओके सो इट कुड बी दैट द पर्सन इज अ कैरियर, और अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से उनको बार बार अनीमिया के जो डिफिकल्टीज है या जो सिम्टम्स है वो नजर आ रहे हैं. बट पता करने के लिए अगेन
you cannot know, because genetic test जो है you will have to, there is something called as gene mapping. हर बार नहीं चेक करने की जरूरत ही नहीं है. ओके, सी बिकॉज अनीमिया होता है तो हीमोग्लोबिन कंटेंट जब कम होता है तो डॉक्टर्स गिव अदर मेडिसिन. हीमोग्लोबिन कम होना, डॉक्टर्स विल नॉट चेक इफ यू आर अ कैरियर. वो जेनेटिक लेवल के टेस्ट अपने यहाँ पे नहीं होते. ओके, इंडिया में नहीं होते. एंड अदरवाइज जेनेटिक टेस्ट आर वेरी वेरी कॉस्टली, ये सब लैक्स में जाते हैं, तो इसका टेस्ट नहीं किया जाता. ओके, इफ अ पर्सन इज नॉर्मल तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगे. थोड़ा बहुत अनीमिया होगा तो मेडिसिन से उसको क्योर किया जा सकता है. बट जब ऐसा कोई बेबी बॉर्न होता है तब पता चलता है कि पेरेंट्स हैव द डिफेक्ट. ओके, वो एक ही तरीका है पता करने के लिए. अदरवाइज जेनेटिक स्टडीज करने पड़ते हैं, विच नॉर्मल पीपल कोई भी नहीं कर सकता, बिकॉज वो लैक्स में जाता है उसका खर्चा एंड ऑल दीज थिंग्स. ओके, देयर इज समथिंग, सी अभी गोइंग इनटू डिटेल्स, आईवीएफ जो टेक्निक अभी है न्यू, ओके, जिसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जिसमें बॉडी के बाहर बेबी प्रोड्यूस किया जाता है, जाइगोट. मदर के एग्स लिए जाते हैं, फादर के स्पर्म्स लिए जाते हैं, उनको फर्टिलाइजेशन करके उस एम्ब्रियो का जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं. ओके, उस एम्ब्रियो का जेनेटिक टेस्टिंग करके, बट वो भी अगेन कितने लेवल तक कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स फ्रॉम लैब टू लैब. नंबर बराबर है, कोई क्रोमोसोम के शेप में डिफेक्ट है कि नहीं, वो जीन लेवल तक नहीं जा सकते. जीन लेवल इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड लेवल, बहुत डीप लेवल है. यू कैन नॉट गो एंड सी द जीन्स बिकॉज जीन्स आर सो माइन्यूट. सोचो, क्रोमोसोम्स आर बंडल्स ऑफ डीएनए, और उस डीएनए में जीन्स है, और उस जीन में डिफेक्ट है बिकॉज ऑफ सम कोड. तो उस लेवल, दैट इज अ वेरी वेरी डीप लेवल. उस लेवल पे फाइंड आउट करना इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, I hope your doubt is cleared. मैम अगर एक नॉर्मल रहेगा और एक कैरियर रहेगा तो मिस क्या जीनोटाइप रेशियो होगा? ओके, एक नॉर्मल और एक कैरियर रहेगा, तो अगेन सी, नॉर्मल और कैरियर, सो नॉर्मल विल बी डोमिनेंट, कैरियर विल बी रिसेसिव. तो अगेन व्हाट विल बी द कॉम्बिनेशन? तुम लोग ही देखो, नॉर्मल मतलब उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, HBA, उसके जेनेटिक कॉम्बिनेशन, और कैरियर का कॉम्बिनेशन होगा HBS. तो 4 कॉम्बिनेशंस क्या बनते हैं? 2 HBA बनेंगे, मतलब आधे बच्चे नॉर्मल होंगे, और 2 HBS बनेंगे, मतलब आधे बच्चे कैरियर्स होंगे. ओके, आई रिपीट, एक नॉर्मल इंसान, मेल फीमेल कोई भी हो, और एक जो है हस्बैंड वाइफ में से एक कैरियर है. ओके, तो उनके जितने भी बच्चे होंगे उसमें से 50% नॉर्मल होंगे, जिनमें कोई डिफेक्टिव जीन होगा ही नहीं, और 50% डिफेक्टिव होंगे, बट वो डिजीज नहीं आएगा उन लोगों में. कैरियर्स होंगे और नॉर्मल होंगे. ओके, सो बोथ द वैरायटीज विल बी सीन. शादी के पहले डियर नहीं पता चल सकता. ओके, दैट इज व्हाई द ओनली वे इज टू अवॉइड अ मैरिज इन द फैमिली. तो कोई भी जीन हो, नॉट ओनली दिस जीन, कोई, इट कैन बी कि सी चश्मे का नंबर भी दैट इज ऑल जेनेटिक. ओके, आईज का जो ये है, व्हाट यू कैन से, आईज के जो प्रॉब्लम्स है या बाकी जेनेटिक डिफेक्ट्स है, ये सारे डिफेक्ट्स अगर अवॉइड करना है तो जो सी, अगर हम लोग किसी बाहर के इंसान से मैरिज करते हैं आउटसाइड द फैमिली, तो उसमें डिफेक्ट हो सकता है ऑफ कोर्स, बट जरूरी नहीं है कि हम लोग में जो डिफेक्ट है, जिस जीन में डिफेक्ट है उसमें उसी जीन में डिफेक्ट होगा. दैट इज अ वेरी रेयर पॉसिबिलिटी. ओके, तो अगर वाइफ के एक जीन में डिफेक्ट है और हस्बैंड के उस जीन में डिफेक्ट नहीं है, तो बच्चे में वो डिफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज द नॉर्मल जीन विल बी डोमिनेंट. सेम वे हस्बैंड के किसी जीन में डिफेक्ट है बट वाइफ के नहीं है, तो वाइफ का जीन लिया जाएगा. तो डिफेक्ट्स दोनों में होंगे, बट अलग अलग जीन्स में होंगे, तो बच्चों में वो डिफेक्ट्स नहीं आएंगे. सो दैट इज द ओनली वे टू प्रिवेंट जेनेटिक डिफेक्ट्स. शादी के पहले कोई भी टेस्ट करके, बिकॉज देयर आर नो सिंपल टेस्ट फॉर दिस, इसके लिए कोई टेस्ट नहीं, मतलब है नहीं कि ये सब फाइंड आउट करे. ओके, तो ओनली वे इज टू अवॉइड मैरिजेस विद इन द फैमिली. सेम फैमिली में मैरिजेस जब अवॉइड होते हैं, जब बाहर के जो अनरिलेटेड लोगों से शादी होती है, तो देयर इज अ रेयर पॉसिबिलिटी और ऑलमोस्ट नो पॉसिबिलिटी कि कोई जेनेटिक डिफेक्ट आगे बच्चे में आए. हाँ, वो जीन आ सकता है, कैरियर्स बन सकते हैं, बट वो डिफेक्ट नहीं आएगा. ओके, डिफेक्ट नहीं आएगा तो ना तो वो बेबी मरेगा, मतलब बिकॉज ऑफ सच डिजीजेस, ना तो वो डिफेक्टिव पैदा होगा, ना तो उसमें
कुछ एबनॉर्मलिटीज होंगे. ओके